Hello students, good afternoon, good morning, good evening, good night to everyone and namaste to all. जो बच्चा जिस टाइम पे भी क्लास देख रहा है उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना अपने आप को. नाउ वी आर डिस्कसिंग electrochemistry and this is our third video related to the electrochemistry. In last video we discussed about the discharge potential theory. So now we are going to discuss some questions related to the electrolysis and what are the product form during the electrolysis. Suppose you are given these questions are frequently asked in your examination. Suppose करो what are the electrolysis product of molten or fused NaCl, means there is no aqueous solution, electrolytic solution. ठीक है. Suppose करो this question is given to you and you have to find out what are the product form at the respective electrode. So how we solve this question? Now take NaCl in the fused or molten state and simple electrolysis process is going on. You provide the electricity and due to which you break the NaCl into the respective ion, that is Na plus and Cl negative. ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो देर इज़ नो इशू कि व्हाट आर द आयंस फॉर्म. नाउ फर्स्ट इज कैटायन, सेकेंड वन इज एनायन. तो कैटायन गोज टू कैथोड एंड एनायन गोज टू एनोड. तो व्हाट इज हैपनिंग एट द कैथोड? तो नाउ रिएक्शन एट कैथोड, व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म एट द कैथोड? Yeah, what is the product form at cathode? Now sodium ion, because it is positive charge, reaches towards the negative electrode, it will gain the electron from the cathode. Cathode से electron लेगा and change into the neutral species, means sodium is deposit over the electrode. So this is a reduction process because gain of electron is called reduction. So at cathode reduction process is going on. Now come to the anode. रिएक्शन एट एनोड. ठीक है बच्चों, व्हाट प्रोसेस गोइंग आउट एट द एनोड? तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस विल टेक्स प्लेस. नाउ दिस क्लोरीन, दिस इज एनायन, एनायन गोज टू एनोड. दिस क्लोरीन रीचेस टू द पॉजिटिव एनोड और व्हेन इट रीचेस टू द व्हेन क्लोरीन आयन रीचेस टू द एनोड इट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन बिकॉज एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज. तो ये पुरानी वीडियो में सारे बच्चे अगर जिसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ रिमाइंड द वीडियो, जो लास्ट वीडियोस, देन यू आर एबल टू इजीली अंडरस्टैंड द टॉपिक. तो Cl नेगेटिव gives us Cl dot plus electron. Here is the loss of electron, so this is called the oxidation. We already know कि Cl dot is not stable because chloride Cl dot मतलब free radical is not stable, तो it is trying to change to come into the stable state. So Cl dot combine with another Cl dot that is produced during the reaction, combine with each other and change into the chlorine gas. तो सिंपल सी बात क्या हो रही है कि at cathode sodium deposit, at anode chlorine gas is evolved. So these are the product when molten NaCl is fused. तो सारे बच्चे नोट करेंगे. उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, प्लीज नोट. ओके बच्चों, आई होप सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा. नाउ टेकिंग द सेकेंड एग्जाम्पल, व्हाट आर द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट फॉर्म? व्हाट आर द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन what are the electrolysis product of aqueous NaCl is given? Aqueous NaCl is given. ठीक है बच्चों, तो aqueous NaCl given है, तो सिंपल सी बात है NaCl and water is given. Aqueous means water. Now this will break down, dissociate due to electrolysis, Na plus and Cl negative, and this is dissociate electrolysis into H plus and OH negative ion. Now
there are two cations Na plus and H plus and two anions Cl negative and OH negative. So there are two cations Na plus and H plus. So according to the preferential discharge theory, lesser is the discharge potential. It is the cation is moves towards the respective electrode. तो इन दोनों में जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा उसका ही क्या होगा, वही जाके डिपॉजिट होगा किस पे, जाके कैथोड पे. तो अगर मैं देखता हूँ दोनों में से, तो H प्लस, लास्ट क्लास का वीडियो देख रहे हैं, लास्ट क्लास के वीडियो में मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया हुआ है. तो Na प्लस और H प्लस के अंदर इसकी जो वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की 0 होती है, 0.00, और इसकी -2.31 समथिंग होती है वोल्ट में. तो इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है. तो रिडक्शन पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्चार्ज पोटेंशियल. तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, कम होता है. इट मीन्स H प्लस हैविंग लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल एज कम्पेयर टू Na प्लस. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वही आयन क्या करता है, मूव करता है टूवर्ड्स द कैथोड और एनोड. तो इसका मतलब आउट ऑफ Na प्लस और H प्लस विल मूव. कौन मूव करेगा, H प्लस जाएगा. तो इसका मतलब मुझे पता लग गया कि कैथोड पे कौन जाएगा, तो रिएक्शन एट कैथोड, बिकॉज ऑफ द लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस विल मूव. H प्लस बिकॉज एट कैथोड रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस, तो H प्लस गेन्स द इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू द H डॉट. तो H डॉट इज अनस्टेबल, तो H डॉट इज अगेन कंबाइंड विद अनदर H डॉट, it will change into the hydrogen gas. So it means at cathode hydrogen gas is removed. Now come to the anionic part. Cl negative and OH negative is there, which will have lower discharge potential. तो in case of anion there are 4 or 5 anions. तो मैं क्या कर लेता हूँ, सीधा सीधा उनको लिख देता हूँ, हमें ज़्यादा टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है तो वही क्या करता है, सबसे जल्दी मूव करता है टूवर्ड्स द एनोड. तो सबसे ज़्यादा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल है दैट इज PO4 3, सबसे ज़्यादा इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है. देन सल्फेट आयन, देन NO3, देन OH नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव. इट मीन्स Cl नेगेटिव हैज़ द लोएस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल. तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑर्डर, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑर्डर है ये. तो इसका मतलब क्या है कि Cl नेगेटिव इज द लोएस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल. इसका मतलब अगर आपको Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में देखना होगा कि विच विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, तो Cl नेगेटिव विल मूव बिकॉज Cl नेगेटिव इज द लोएस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल. तो जिसका लोएस्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वही क्या करता है, मूव करता है. अगर OH नेगेटिव और सल्फेट आयन दे रखा है देन OH नेगेटिव विल मूव टुवर्ड्स द एनोड बिकॉज एज कम्पेयर टू द सल्फेट आयन OH नेगेटिव आयन हैव lower discharge potential. So there is no confusion. Now Cl negative and OH negative, both two anions are given. We know that discharge potential of Cl negative is lesser than the OH negative, so Cl negative will move towards the anode. तो now reaction at anode. तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वही मूव करता है. तो Cl नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है as compared to OH negative, तो Cl negative will move. तो what is happen, because at anode oxidation process will takes place, so Cl will lose its electron, Cl dot plus electron. तो oxidation process going on. We know that Cl dot is unstable form of the chlorine, so it will again combine with another Cl dot and will change into the Cl2 gas. So at cathode hydrogen gas is removed, at anode chlorine gas is removed. Now the question is, what is the nature of the solution now? कि सपोज करो NaCl के अंदर पानी है, ये सारा प्रोसेस चल रहा है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. तो ड्यूरिंग द रिएक्शन हमने देखा कि क्लोरीन गैस बाहर निकल चुकी है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल चुकी है. अब सॉल्यूशन के अंदर रह क्या क्या है, Na प्लस एंड OH नेगेटिव आर रिमेनिंग. दे कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म NaOH. इसका मतलब है व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज बेसिक बिकॉज NaOH इज बेस. तो सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक. सारे बच्चे जल्दी से नोट करें इसे.
सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि वाई Cl नेगेटिव आयन मूव नॉट OH नेगेटिव आयन, बिकॉज द Cl नेगेटिव हैव लो डिस्चार्ज पोटेंशियल एज कम्पेयर टू द OH नेगेटिव, दैट इज वाई Cl नेगेटिव आयन मूव। तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जल्दी से करो बच्चों इसको। ओके बच्चों, लिख लिया आपने शायद, आई थिंक यू नोटेड डाउन एवरीथिंग। नाउ कम टू द अनदर एग्जांपल। व्हाट आर द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ, ये सारी चीज़ें मैं आपने नोट कर ली होंगी तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू इरेज एवरीथिंग। नाउ टेकिंग अनदर एग्जांपल, दैट इज योर एक्वस CuCl2। इसके बाद एक और एग्जांपल लूँगा लास्ट, उसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द, व्हाट आर द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। तो CuCl2, हाउ वी सॉल्व, तो सिंपल सेम मेथड वी अप्लाई, कॉपर क्लोराइड एंड वाटर इज देयर, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, इलेक्ट्रोलिसिस। तो दिस copper chloride will change into the Cu+2 plus 2Cl negative, change into the ions. Similarly, water will dissociate, give H plus and OH negative ion. Now the same problem arises, 2 cation, 2 anion. In this case, we already discussed, so there is no issue. Chlorine have lower discharge potential as compared to the OH negative ion, तो chlorine will move towards the anode. तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। Problem between Cu+2 and H plus। तो ये जो हमने टेबल पढ़ी थी, जिस बच्चे ने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा लास्ट क्लास वाला, प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। अच्छा पसंद आता है तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें उसको। नाउ देर आर 2 कैटायंस Cu+2 एंड H+। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu+2, याद नहीं करनी वैल्यू, केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 0.00, एंड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द Cu+2 इज +0.34। इट मीन्स Cu+2 इज लाइंग बिलो H+। Cu+2 जो होगा यहाँ पे H होगा और उसके नीचे क्या होगा, Cu+2 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि Cu+2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द H+। और मैंने आपको बताया कि जिसका जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल उतना ही कम होता है। इट मीन्स Cu+2 हैव लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल एज कम्पेयर टू H+। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वही मूव करता है टूवर्ड्स द कैथोड। तो कैटायन है तो कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब इन दोनों में कौन जाएगा, Cu+2 बिकॉज ऑफ द लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। इन दोनों में कौन जाएगा, Cl नेगेटिव बिकॉज ऑफ द लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो मुझे पता लग गया कौन मूव कर रहा है। तो नाउ कम रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे लिख लेते हैं, यू कैन राइट ऑन एनोड आल्सो। तो Cu+2 बिकॉज एट कैथोड द रिडक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, 2 इलेक्ट्रॉन इट विल चेंज इनटू द कॉपर, रिडक्शन होगा यहाँ पे बच्चों। नाउ रिएक्शन एट एनोड, व्हाट इज हैपन एट एनोड, Cl नेगेटिव ऑलरेडी लिख चुका हूँ बच्चों इसको, Cl डॉट प्लस इलेक्ट्रॉन, दिस इज अनस्टेबल, Cl डॉट प्लस Cl डॉट गिव्स अस Cl2। इट मीन्स एट कैथोड कॉपर इज डिपोजिट एंड एट एनोड क्लोरीन गैस इज इवॉल्व। जल्दी से नोट कर लें बच्चों इसको। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं इसका और उसके बाद फिर हमारा जो फैराडेज लॉ से रिलेटेड है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। जल्दी से नोट करें बच्चों इसको। नाउ आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने बच्चों। What are the electrolysis product of aqueous H2SO4? This is our last example related to the electrolysis. Aqueous H2SO4 या hydrated H2SO4 कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। सिंपल सा H2SO4 is given to you. This is H2SO4, H plus and sulfate ion due to the electrolysis. Now H2O change H plus and OH negative. Okay. Now there is no issue with the cation. Cation is same. Here is also H plus. यहाँ पे भी H plus है, प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका मतलब H plus ही जाएगा।
इन दिस केस सल्फेट एंड OH नेगेटिव। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो अभी मैंने 4-5 आपको लिखवाए थे, OH नेगेटिव हैविंग लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल एज कम्पेयर टू द सल्फेट आयन, तो दिस विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन, कैटायन मतलब H+, H+ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन प्रोसेस है, H डॉट में चेंज हो जाएगा। नाउ H डॉट इज अनस्टेबल, तो H डॉट प्लस H डॉट चेंज इनटू हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाएगा। नाउ कम टू द एनोड पार्ट, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या होगा, दिस OH नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, तो इट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, तो OH नेगेटिव इज चेंज इनटू OH प्लस इलेक्ट्रॉन। दिस OH इज अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल, तो इट विल चेंज इनटू द स्टेबल प्रोडक्ट। जैसे हम जानते हैं कि कभी भी अनस्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा, अब ये वाला आपको रिएक्शन याद रखनी है बच्चों, कभी भी OH आएगा तो आपको यही वाली रिएक्शन याद रखनी है। दिस 4OH will change into the twice H2O plus O2. It means at cathode hydrogen gas is evolved, at anode oxygen gas evolved along with the water molecule. So this is all about the electrolysis and what are the electrolysis product. So in the next video we will study about the quantitative aspects of the electrolysis product, और इन दैट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो अभी के लिए इतना बहुत है, आपको बच्चे अच्छे से याद समझ लेना, याद कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। ओके बच्चों, थैंक यू।